Okay, so good evening, all of you. I hope you're doing well. First of all, congratulations from my side for CFA Level 2 clearance. Great achievement. And now we are here discussing CFA Level 3. So I think 1 week has gone by since the Level 2 results were declared. And the positivity, the rhythm is still there. And we got to maintain this rhythm. Because if we talk about career, success, not only in the CFA exam, but in real life, because that is what determines the financial success. It will depend critically upon CFA level 3. Let me tell you, there are so many students of mine who have not taken CFA level 3 seriously. So either they have just cleared or they have flunked and cleared, and they are doing moderate. Moderate as in a package of around 10 lakhs, 12 lakhs, which is not a big package, believe me, because the take home is very low. There are others who have done it in a very holistic manner, and their package is touching 1 CR plus. I'm talking about, say, 3 years, 2.5 years in the industry, and they've touched 1 crore. So I hope you understand, because many people don't, that clearing the CFA exam, or for that matter, any exam, is not a big thing, and that is not a determinant of success. That is required, uske bina kuch ho nahi sakta hai, but ultimately the depth with which you cover the content in the program, especially CFA program, जो इतना practical है और जिसके अंदर the content is so rich and so applicable in real life, इस content में if somebody is not paying attention and not enjoying the content, so in that case it will reflect upon what you can earn. Anyways, this session is meant for two purposes. Number one, to give you a detailed bird eye view of CFA level 3. And number two, to also motivate you for CFA level 3 and the career prospects it holds. So if I talk about the general stuff, which most of you may be aware of, but let me just complete the formalities. You know that in CFA level 3 examinations, you will be first of all exposed to constructive response questions. Any questions where you have to type the answers. It is CBT, but you have to write the answers. It is not like A, B, C multiple choice. You have to write the answers. And Indian examination system, right from childhood, was all about writing the answers. Of course, on copy and pen. So some people may go to the extent of saying that, sir, mera typing speed acha nahi hai. What do I do? Nothing. Don't worry, you don't have to type a lot. In fact, you are blessed by the fact that आपका typing speed अच्छा नहीं है. जिसका typing speed जितना खराब उतना बढ़िया, because that means वो कमती लिख के आएगा. तो अपने इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम में अपने को बचपन से बताया गया, राइट मोर, पेजेस भरो, और पेजेस भरने से perhaps you will get more marks. Your marks are proportional to the number of pages. That is a total shitty affair at CFA level 3 examinations. They don't want big stuff written. They don't want languages written. They want, जैसा अपना क्लास का नोट्स होता है ना, डैश दिया हुआ, डैश डैश डैश, और अकॉर्डिंगली इनफॉर्मल नोट्स, जहाँ पे अपने फैंसी वर्ड्स नहीं लिख रहे हैं, अपने टेक्निकल टर्म्स लिख के आगे जा रहे हैं. We'll talk more about it. Okay, when constructive response का अलग से मेरा वीडियोस भी है, and I will have repeated sessions with you, and क्लास के अंदर भी constructive response का काफी डिस्कशन है. तो नंबर 1, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में वो इंडियन स्टाइल में लंबा लंबा लिखना नहीं है. ना होता ये है कि जैसे 2 पेपर्स है ना, you know that in both the papers we'll have 11 questions each. 11 questions in the first paper, 11 questions second paper. Let me call it section 1, section 2. So जो 11 questions है, there are 12 points each, so 132 points, 132 minutes. 11 questions of 12 points each, so 132 points, so 132 minutes. 2 घंटा 12 मिनट, 2 hour 12 minutes का पर सेशन है, विद एन ऑप्शनल ब्रेक. वो जो 11 क्वेश्चंस आएंगे, वो 11 क्वेश्चंस में
It will be 6 and 5 or 5 and 6. I mean to say 6 constructive response and 5 item sets. Item sets बने level 2. या फिर 6 item sets and 5 constructive response. So 6, 5, 5, 6 होगा. We don't know. आइटम सेट्स के बारे में कुछ बोलने का बात ही नहीं है. वो तो पूरा का पूरा जो लेवल 2 में आइटम सेट्स होता था वैसा ही है. ठीक है. 4 क्वेश्चंस आएंगे आइटम सेट में 3 मार्क्स के, तो 4 3 जा 12. कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स में जरूरी नहीं है 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दे कैन प्ले अराउंड विद इट कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स में. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ द कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस आर ग्रेडेड. तो सपोज there is a write-up given about a middle-aged couple. एक middle-aged couple है, somewhere in their late 40s, and they will tell us that what is their source of living. Say the husband is a doctor working in a hospital, and say the wife is an entrepreneur who has started her own startup some 5 years ago. And then they will tell us more details about the couple, their existing investments, their biases, जो level 1 में biases था, what are their requirements in future, children कितने बड़े हैं, and what are the requirements in that respect, what are the goals they have, what are their retirement goals, okay, and what is their idea about markets, the maturity and the sophistication. And then they'll ask us that what is the risk tolerance level of the couple. Is it high? Is it medium? Is it low? And we have to justify with 2 responses. So you have to, like a multiple choice, choose high, medium, or low, and then give 2 justification about the same. For example, suppose write-up में लिखा हुआ है कि they have a long time horizon, which they have because middle-aged है, so they have a long time horizon. और ये write-up में ही लिखा हुआ है, case facts में. And नीचे में आपने reason दिया कि risk tolerance level is suppose आपने बोला high, और उसका reason क्या दिया? Long investment horizon. पर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन तो केस फैक्ट्स में दिया हुआ था, आपने वो कॉपी कर दिया एज इफ कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है क्लास 5 6 7 का. यू हैव टू राइट ना लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये केस फैक्ट है डैश, दिस मींस द पोर्टफोलियो हैज द एबिलिटी टू सफर लॉसेस, हेंस हाई रिस्क टॉलरेंस. लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन का इंप्लीकेशन क्या है कि पोर्टफोलियो में अगर लॉस हुआ तो भी वो मेकअप करने का समय मिल जाएगा. ठीक है, इसको इलेबोरेट नहीं करना है आप कि आप एक्सप्लेन करोगे. लेट मी एक्सप्लेन. सपोज द पोर्टफोलियो गोज डाउन विद 20% एंड देन इट गोज अप, सो देयर बी अ टाइम इन्वॉल्वड. नो एक्सप्लेनेशन. डू नॉट ट्राई टू टीच द एग्जामिनर. Okay, you just have to indicate to him that you know the reason, and you don't repeat the case fact. You repeat the case fact and then explain it in a single sentence or half a sentence. Okay, that is allowed. अगर सपोज उस पे लिखा हुआ है कि जो कपल है उनका एनुअल सेविंग्स है, अगर उनका एनुअल सेविंग से ये लिख दिया, इसका मतलब एक्सपेंडिचर इज कवर्ड. तो जब आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो ना कि बने द पोर्टफोलियो इज सपोज टू मीट व्हाट ऑब्जेक्टिव, तो पोर्टफोलियो इज नॉट सपोज टू मीट एक्सपेंसेस बिकॉज दे आर एनुअली सेविंग. The portfolio is not required to meet expenses. So when you calculate the return requirement, तो आप expense को लेके divide by the asset base, you can't talk about इतना return कमाना पड़ेगा, वो wrong हो जाएगा. So you have to be very careful about reading, rereading, 3 times reading of the write-up. Okay, छोटा write-up रहता है, बड़ा write-up नहीं होता है, और आंसर भी छोटा ही लिखना पड़ता है. ठीक है, वो चीज तो खैर जब टॉपिक का डिस्कशन करेंगे तब आएगा. कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में सपोज एक क्वेश्चन आया एग्जाम में. अब वो जो क्वेश्चन आया एग्जाम में, उस क्वेश्चन को ग्रेड करने के लिए एक टीम बना है 4 जन का. एक क्वेश्चन को ग्रेड करने के लिए 4 जन का टीम है. ओके, से T1 T2 T3 T4, ये 4 जन का टीम है, विल ग्रेड द फर्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट. वो चारों जन मिलके दे विल बी प्रोवाइडेड विद द सजेस्टेड आंसर बाय द इंस्टीट्यूट. वो सजेस्टेड आंसर अपने को दिया रहता है, और वो सजेस्टेड आंसर एकदम बड़ा लिखा रहता है, को रीडिंग से कॉपी किया हुआ. तो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग आंसर गिवन, एंड स्टूडेंट सोचता है यार मैं तो ये लिख ही नहीं पाऊंगा, और आपको लिखना भी नहीं है. वो सजेस्टेड गाइडलाइन आंसर के बेसिस पे वो है वो लोग के पास. अब देखते हैं स्टूडेंट ने जो जरा बहुत लिखा है वो कैसे मैच करता है उससे, उसके सब्सटेंस से कैसे मैच करता है. ओके, यानी 4 जन मिलके केवल एक क्वेश्चन का चेकिंग करेंगे ऑफ ऑल द थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. 4 जन मिलके केवल एक क्वेश्चन का चेक करेंगे, और उनका जो चेक किया हुआ क्वेश्चन है उसको फर्दर रीचेक किया जाएगा बाय समबडी एल्स इफ देयर वाज अ डिस्प्यूट इन दैट क्वेश्चन. देयर इज नो पॉइंट दैट वो लोग कोई भी मिस्टेक कर सके. देयर इज नो वे बाय विच
दे कैन मिस करेक्ट योर आंसर. ओके. सेकंड क्वेश्चन जो है, चार अलग टीम है, माने चार एक जिनका अलग टीम है जो चेक करेगा सेकंड आंसर. ओके. सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, सीएफए लेवल 3 का स्टूडेंट जब गाइडलाइन आंसर पढ़ता है उसको लगता है मेरे को वो लिखना है, वो नहीं लिखना है. वो गाइडलाइन आंसर इज अ को रीडिंग का टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस किया है जिससे आपको वो पूरा सिखा रहा है, और वो लोग को भी सिखा रहा है, वो चारों जन को. उससे जो मैटर है, सब्सटेंस है, उसको आपको एक लाइन, दो लाइन, हाफ अ सेंटेंस में लिखना है. ओके. तो बहुत कम लिखना है, एंड द करेक्शन इज वेरी वेरी डीप. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए. डैश डैश विल बी अलाउड. जैसे मैंने क्या बोला, केस फैक्ट, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन, डैश implies portfolio will be able to recoup the losses. Portfolio will be able to recoup the losses. Sufficient. I get full marks for it. Okay. The more you write to the point, better it is. बाकी डिस्कशन क्लासेस में होगा. तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स से डरना नहीं है. यू मस्ट बी अवेयर दैट करीब 1.5 साल 2 साल पहले जो एएम सेशन आता था, फर्स्ट सेशन, दैट वाज कंप्लीटली कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, एंड द पीएम सेशन वाज आइटम सेट. तो एएम सेशन में लोगों का छुटता था पेपर, पीपल वे रियली वरीड, और पीएम सेशन में लोग बहुत अच्छा करते थे. तो सीएफए इंस्टीट्यूट भी फ्रस्ट्रेट हो गया इस चीज से. तो सीएफए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जस्ट एएम पीएम होगा ही नहीं, जा दोनों में ही कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स आइटम सेट है, इस पेपर में भी उस पेपर में भी, दोनों में ही. ओके. और सिलेबस बाइफर्केशन, यानी पूरा सिलेबस पेपर 1 में आ सकता है, सेक्शन 1 में, पूरा सिलेबस सेक्शन 2 में आ सकता है. यू अंडरस्टूड? दिस इज हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड. सो यू नो अबाउट द पेपर कंटेंट, दैट वे इट विल कम. इफ यू वांट टू नो अबाउट द सिलेबस फॉर सीएफए लेवल 3, तो एक बार अपने 2025 का सिलेबस का 2 मिनट बाद बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट 2024 तक का सिलेबस. 2024 तक सीएफए लेवल 3 इज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सीएफए लेवल 3 इज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. तो एक बार याद करते हैं, आप लोग रिप्लाई कीजिए. व्हाट आर द स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? यस प्लीज. सीएफए L1 में था. व्हाट आर द स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? व्हाट आर द स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? आई एम लुकिंग एट योर चैट. मन देसाई, विवेक पटवारी, अनमोल सिंघल, गौरव. What are the steps in portfolio management? Yes, जवाब आया ना. Planning, execution and feedback. Planning, execution and feedback. Those are the steps in portfolio management. So planning stage पे what do we do? We study number 1 the client, and number 2 we study the market. Number 1 we study the client, RRTT LLU. Okay, the IPS वाला part. And number 2 we study the market, capital market expectations. याद आ रहे? We study the client, we study the market. ठीक है. Study the client मतलब the client may be an individual client which goes under private wealth management, or the client may be an institutional client, a pension fund, an endowment fund, a sovereign wealth fund. So client can be an institutional client, or a client can be an individual client. Individual client falling in the HNI or ultra HNI category, correct? With his own biases and all that stuff. So private wealth management becomes one syllabus ka area which has a lot to deal with taxation issues, estate planning issues, concentrated single asset position. जैसे मेरा SSCI में, obviously मेरा wealth SSCI में है, because that's what I have done throughout my life. I do have some other holdings, but मेरा primary wealth तो SSCI में है. ठीक है. तो SSCI का अगर मैं SME IPO ले आऊं, ठीक है, तो in that case अब मेरा shares trade हो रहा है, तो maybe my 60% 70% wealth is concentrated in SSCI. So as an advisor, मेरा जो wealth manager है वो तो बोलेगा ना कि sir, it's a deep risk that you are taking. Okay, so in that case, how do you come out of it without taxation angle, but without losing control over the company? ठीक है, मेरे को कंट्रोल चाहिए, पर एट द सेम टाइम मेरे को रिस्क कम करना है. क्या मैं पुट बाई कर लूं क्या? बट पुट में मेरा कॉस्ट लग जाएगा, तो ऊपर में कॉल सेल कर दूं क्या, जिससे कि प्रीमियम कम हो जाए? और भी तरीका है. इंश्योरेंस बाई कर लूं क्या? कोई और व्हीकल में ट्रांसफर कर दूं क्या? ठीक है. तो मेरे जो किड्स वगैरह हैं उनको मेरा वेल्थ कैसे ट्रांसफर होगा? ठीक है. क्या हम लोग कोई विल में एंटर कर ले? विल में, ओके, जिससे कि वो हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई नहीं हो, जहां पे 1/3 1/3 1/3 चला जाता है. ओके. वाइफ को, किड्स को, व्हाटएवर इट इज, और मदर को. ठीक है. या फिर मैं विल एंटर कर लूं, पर विल में प्रोटेक्शन नहीं होगा, कल के दिन कुछ लायबिलिटी आ गया तो मैं ट्रस्ट कर लूं क्या? ट्रस्ट कैसा करूं? इरिवोकेबल ट्रस्ट, रिवोकेबल ट्रस्ट, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, बीक्विथ करूं क्या? तो मतलब स्टेट प्लानिंग, वेरी बिग इश्यू फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एंड टैक्स or concentrated single asset position, and a general discussion of
that risk objective, return objective and constraints का discussion private wealth management में है. I'm telling you about the syllabus. Institutional wealth management में sovereign wealth fund, the likes of Abu Dhabi, they know that the world order is going to change. We are going to move away from fossil fuels, oil, into renewable energy. That's going to happen. And that's going to happen, say, over a period of 30, 40, 50, 60 years. They will have to plan for it. So Abu Dhabi Wealth Fund jo hai, that's investing massively in AI, okay, in emerging technologies. It's also all the shopping malls and everything that we see over there. They are all created so that they may have another source of revenue rather than oil in future. So they are planning for the future that way. नॉर्वे का खुद का बड़ा वेल्थ फंड है, ओके, सॉवरेन वेल्थ फंड. तो सॉवरेन वेल्थ फंड का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, ओके. द टारगेट इज intergenerational wealth creation. So in that case, what type of investments they will make? Of course, they can invest in alternate investments which are illiquid because they do not require that much liquidity. They have a long investment horizon. Same holds good for endowments and foundations. They generally have a long term. Pension fund. तो pension funds में जो employees covered है उनका average life क्या है, ठीक है. बाकी सारा फैक्टर्स वो सरप्लस पे चल रहा है कि डेफिसिट पे चल रहा है. बैंक्स उनका, तो बैंक्स का, फिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कंपनीज, जो लेवल 1 में इंट्रोडक्शन था ना, इफ यू चेक लेवल 1 का चैप्टर तो उसमें सबके बारे में पढ़ाया हुआ है. बट देन यहाँ पढ़ाया हुआ नहीं है, यहाँ पे उनका पोर्टफोलियो मैनेज करना है अपने को, ठीक है. तो इंस्टीट्यूशनल का पूरा एक सिलेबस है, उस पर केस स्टडीज भी है. प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का पूरा एक सिलेबस है, उस पर केस स्टडीज भी है. देन वी कम टू कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस. Capital market expectations is economics in practice. You studied level 1 economics. There we had some micro, we had macro, we had international. Level 2 we further studied economics where we had economic growth, LTEG. Okay? We had the currency stuff over there and we had some regulatory stuff over there. Now all this is to be applied to form ER, SD and correlation between the stocks and everything. जो भी मेरे को लेना है पोर्टफोलियो में, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या क्या है, उसका एसडी क्या क्या है, उसका कोरिलेशन क्या है, बीटा क्या है, तो वो फोरकास्ट करना पड़ेगा सीएमई की हेल्प से. लॉन्ग टर्म सीएमई फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, शॉर्ट टर्म सीएमई फॉर द पर्पस ऑफ टैक्टिकल एसेट एलोकेशन. तो इकोनॉमिक्स इज देयर एज अ पार्ट ऑफ सीएमई, नॉट द हार्डकोर इकोनॉमिक्स, द एप्लीकेटिव इकोनॉमिक्स, जिसमें लेवल 2 का काम आता है द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द लॉन्ग टर्म, जीएल प्लस जीवाई बाई एल, ओके, प्लस साइकिल्स का काम आता है कि व्हाट डू वी डू ड्यूरिंग अर्ली एक्सपेंशन, व्हाट डू वी डू ड्यूरिंग लेट एक्सपेंशन, व्हाट डू वी डू ड्यूरिंग स्लो डाउन. यूएस इकोनॉमी में देयर इज अगेन एंड अगेन टॉक अबाउट द फैक्ट दैट द यूएस इकोनॉमी में परहैप्स स्लो डाउन एंड देयरफॉर फेड शुड स्टार्ट कटिंग रेट्स. Yesterday the inflation figures that came out, CPI, was 0.1% below expectations. So therefore that's a further pressure that now that unemployment rate has gone above 4%. Okay, now that the CPI numbers are showing disinflation, so maybe Fed should in the September meeting start cutting interest rates. And if that's what is going to happen according to the fund manager, how should allocation be changed? Okay, so in different stage of business cycle, cash versus REITs versus long-term treasury versus investment grade corporate bonds versus high yield corporate bonds versus large cap stocks versus mid cap stocks versus small cap stocks, domestic stocks, international stocks, okay, real estate, hedge fund allocation, infrastructure investments, private equity investment, private credit investments. How would the allocation be made? That is what we have to advise based on number 1 the client and number 2 the capital market expectations. Because then wo chhatri wala jo part tha na कि we have to construct the optimum portfolio. However, behavioral finance says that optimality is not possible in real life. Optimality is not possible. Why? Because the client of yours has some biases. He has some great memory of the past because of which he doesn't want to invest too much into stock markets. He doesn't want to touch options even for hedging. You can't explain to him the biases because they are emotional biases. So you'll have to tilt the portfolio, which will become less optimal, but it's okay. That is what suits him. He has cognitive biases. So you have to explain to him that he's making some mistake in terms of reasoning and therefore you rectify the biases. Level 1 stuff. CFA level 3 सबसे ज्यादा CFA L1 से कलेक्टेड है. CFA L1 में एक चीज जो सीखी है वो CFA L3 में है in a wider applicative sense. Okay, so I'm trying to tell you the syllabus.
सो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक। तो प्लानिंग हो गया, ये वाला पार्ट, एसेट एलोकेशन बन गया। बनने के बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब ये हुआ कि आई एम द फंड मैनेजर, वी हैव डिसाइडेड दैट इस स्टॉक में पोजीशन लेना है। ओके, अब इस स्टॉक में पोजीशन लेना है तो अपने को 10 लाख शेयर्स खरीदना है। 10 लाख शेयर्स इज मोर लेस सपोज 7% ऑफ द कंपनीज टोटल स्टॉक, वी हैव टू टेक 10 लाख शेयर्स। तो इन दैट केस अपने किसके थ्रू एग्जीक्यूट कराए, कौन से ब्रोकर के थ्रू एग्जीक्यूट करवाए, मार्केट कैसा है वो, ओके, ऑर्डर ड्रिवन मार्केट है या कैसा मार्केट है, कौन से ब्रोकर से एग्जीक्यूट करवाए, वो एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, मार्केट ऑर्डर मारेगा कि लिमिट ऑर्डर मारेगा। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंड वी हैव टू जज कि वो एग्जीक्यूशन कैसा किया, एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग द पोर्टफोलियो। ओके, द बिड आस्क स्प्रेड एंड एवरीथिंग, द इम्पैक्ट कॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जल्दी ऑर्डर मारे तो इम्पैक्ट कॉस्ट लग गया, देरी से ऑर्डर मारे तो मिस हो गया अपॉर्चुनिटी। तो ऑल दैट हैज टू बी सीन, दैट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। Then we move into feedback stage where we obviously do performance evaluation, अगला कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो and we do the benchmarking and all that, वो क्या किया क्या नहीं किया, कि फीडबैक मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, ठीक है, पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करना, ऑल दैट हैपेंस। तो ये तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कोर में जाके, अंदर में जाके, ठीक है। ऑब्वियसली कौन कौन सी एसेट क्लास है, इक्विटी है, तो लेवल 2 में क्या था, एक पर्टिकुलर इक्विटी स्टॉक का वैल्यूएशन। लेवल 3 में एक पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं है, पूरे इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करें, एक्टिव पैसिव। ओके, लेवल 2 में क्या था, एक पर्टिकुलर बॉन्ड का स्टडी। यहां पे क्या है, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक्टिव पैसिव, पैसिव बने इंडेक्सिंग और मीटिंग लायबिलिटीज, एक्टिव, ओके, प्लेइंग अक्रॉस द यील्ड कर्व और प्लेइंग अक्रॉस द ट्रेजरी वर्सेस द क्रेडिट प्रोफाइल, उन सब में प्ले करना है, एमबीएस सीबीएस में प्ले करना, ठीक है, ऑल दैट पार्ट। यू हैव ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट, तो हेज फंड के ऊपर द डिस्कशन इज देयर ऑन हेज फंड। अब तो लेवल 2 में आ गए, तो लेवल 3 में कम हो गया वो, बट स्टिल इट इज देयर। हाउ डू यू एलोकेट टू डिफरेंट ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस, रियल एस्टेट में कितना, अदर्स में कितना, ठीक है। तो इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल्टरनेट एसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन तीनों का डीप डिस्कशन है। Risk management, how do you use derivatives? How do you use derivatives, options and futures and forwards and swaps for the purpose of hedging stock risk, interest rate risk, currency risk globally, okay, across markets? How do you hedge? तो सब क्या करेंसी काम आएगा, लेवल 2 का एकदम जोर जोर से चेप चेप के काम आएगा करेंसी, लेवल 2 का। इनफैक्ट कोई भी ऐसा चीज है क्या जो काम नहीं आएगा L1 L2 का, इफ यू आस्क मी, तो FSA बहुत ही कम काम आएगा, QM बहुत ही कम काम आएगा। तो जो लोग FSA और QM को हेट करते हैं, FSA और QM सबसे कमती काम आने वाले हैं। बट इफ यू आस्क मी, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेट, कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कम काम आएगा। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कम काम आएगा। तो सीए वाला जो एरिया है ना, FSA और कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये कम काम आएगा। इको ऑनर्स वाला जो एरिया है, स्टैट्स, वो कम काम आएगा। इकोनॉमिक्स चिप चिप के काम आएगा, एंड कॉमन सेंस बहुत जोर से काम आएगा, ठीक है। बट वी नो दैट 2025 में CFA इंस्टीट्यूट ने देखा है कि द प्राइवेट मार्केट इज बिकमिंग बिग। मतलब इतना सारा प्राइवेट इक्विटी फंड्स और प्राइवेट क्रेडिट फंड्स और वेंचर फंड्स चालू हो गए ना, कि मतलब इफ द CFA चार्टर होल्डर वांट्स टू मेक अ करियर आज के दिन इनटू प्राइवेट इक्विटी, इनटू yesterday I had a presentation from, if you want to study at home, from Inflexa Opportunity Fund. It's a fund in India which is sector agnostic, investing in startups from IIT and all that, okay, and making a good return. It's coming out of the second series of fund, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी फंड है, प्राइवेट क्रेडिट फंड है, आजकल रियल एस्टेट फंड है। तो वो मार्केट प्लेस इतना बड़ा हो रहा है कि CFA इंस्टीट्यूट को लगा कि शायद वो लोग जस्टिस नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने प्राइवेट मार्केट्स के लिए एक अलग पाथवे कर दिया कि दोज पीपल who think that they will make a career in private markets, they can choose that pathway instead of portfolio management. तो सर, अगर प्राइवेट मार्केट्स पाथवे चुनेंगे तो क्या इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल्टरनेट एसेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना नहीं पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा, पर इनिशियल इतना डेप्थ नहीं है। और जो लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे करेगा, वो लोग को इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ऑल्टरनेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डीपली करना पड़ेगा, और वो लोग प्राइवेट मार्केट्स कम करेंगे। ओके, देयर विल बी लेस ऑफ प्राइवेट मार्केट्स ओवर देयर, ठीक है। थर्ड पाथवे इज द प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पाथवे। इंडिया में फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक, इट इज सेड दैट एज इंडिया राइजेस, ओके, द विकसित भारत का जो 2047 का अभियान चल रहा है,
what is going to happen is that inequality is going to rise. You do whatever, inequality is going to rise, which means skewed distribution of income and wealth hone wala hai. The top 5%, 10% of the population is going to amass more or less 30 to 40% of the wealth and income. And therefore, there is a great demand for ultra HNI ka wealth management. Those who are good in communication skills, okay, those who are good in human issues, they will want to make their career in private wealth management. That's a separate pathway. Okay. Now 2025 में इन्होंने ये जो तीनों पाथवे में राइटअप लिखा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का राइटअप तो वही है, बट प्राइवेट मार्केट का राइटअप सबसे पहले आया और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का राइटअप सबसे पहली बार आया है. ये दोनों राइटअप बहुत ही ज्यादा शैबी है, एम्बिगुअस है, डिस्टॉर्टेड है. तो एनीबडी हु चूजेस द प्राइवेट मार्केट्स पाथवे or the private wealth management pathway is becoming a guinea pig. Okay, आपके ऊपर वो इंजेक्शन देके एक्सपेरिमेंट हो रहा है. So you will be really, really exploited if you choose those pathway. And therefore, clear-cut option नहीं है, clear-cut order है कि everybody should choose the portfolio management pathway for 2025. But sir, I am in the private markets for the last 6 years. Sir, I am in the private wealth management industry for the last 7 years. I want to make a career in this. Why should I choose the portfolio management pathway? I want to choose the private market pathway. The point is that you are talking from a knowledge perspective. From a knowledge perspective, you can do the private markets or the private wealth management after clearing CFA level 3. Na? No, sir, I wanted to do it through your classes. Don't worry. For 2026, most probably, when the matter will be more streamlined, I will come out with separate sections wherein people can opt for only the private markets pathway or the private wealth management pathway as an incremental add-on to the fact that they did CFA level 3. Okay, so the guideline is clear. You have to do the portfolio management pathway. Okay, we are not doing the private markets pathway, and if you are doing it, then you have to choose some other teacher, okay, some other institute which is providing the same. I'm not aware, and or you have to study yourself. Okay, if any such student, एक स्टूडेंट ऐसा था जो 3-4 दिन से सौम्य को बोल रहा है कि उसने प्राइवेट मार्केट्स पाथवे चुन लिया एंड नाउ दैट आई एम नॉट टीचिंग, तो बहुत दिक्कत हो रही है. तो इन दैट केस भाई मैं प्राइवेट मार्केट्स पाथवे पढ़ा तो नहीं रहा हूं, बट यस आई हैव टोल्ड सौम्य टू टॉक टू यू टुडे दैट मैं आपका हेल्प कर दूंगा प्रेपरेशन में. Okay, which means when you have a problem, you can reach out to me. I will keep my lines open. I'm talking not general सब सारी दुनिया के लिए, उस particular person के लिए. Okay, and Soumya will talk to that person today because उसने registration करा लिया CFA Institute के साथ. Because मेरा जो first video आया था ना, come 2025 CFA level 3 shall be a different beast, उसमें मैंने तीनों का तीनों pathway पढ़ाऊंगा ये बोला था, तो वो तुरंत जाके register करा लिया. तो that is my fault. ठीक है, तो for that I will ensure that I am standing by to help you out wherever there is an issue. Okay. When should I appear for the CFA level 3 exam, sir? Feb 25 or August 25? I think Feb 25 would be an injustice. Believe me, I think Feb 25 would be an injustice. Come out of the student mentality. जो लोग वैसा होते हैं ना, सर मैं क्या टान के पढ़ सकता हूँ 10 घंटा 12 घंटा, मेरा तो हैबिट है, मैंने 4 महीने में CFA L1 किया था, 6 महीने में CFA L2 किया था, मेरा CA फाइनल भी ड्यू है फिर मई में, मैं Feb 25 में निकालना चाहता हूँ. ये जो निकालना चाहता हूँ वाला है ना, इसके कारण मैटर कॉम्प्रोमाइज होगा. ट्रेजर, इट्स अ ट्रेजर जो वेट कर रहा है आपका, जो कंटेंट है. ठीक है, आपके पास चाबी भी है उस खजाने की, बट आप उसको बाहर से देखना चाह रहे हैं. यू आर जस्ट वांटिंग टू एंजॉय द ट्रेजर फ्रॉम आउटसाइड, नॉट टू टेक द ट्रेजर विथ यू. I don't advise Feb 25. I advise August 25 for all of you. Somebody is registered July 9th के पहले, that's a different thing. ठीक है, तो but otherwise मैं August 25 seriously advise कर रहा हूँ, and that does not mean that then you don't study right now. The matter is very big. What is the problem in CFA level 3? It is not about the constructive response. The problem is that level 1 was easy because level 1 had a lot of practice questions. भर भर के practice questions था. नई समझा हुआ चीज भी समझ में आ जाता था 100 क्वेश्चंस करके, and you have to acknowledge this. Level 2 became easy. If I say easy, level 2 was obviously hard, but it was easy because of numericals. Level 2 में numerical, whether it's fixed income, whether it's equity, whatever it is, they were numericals. Level 3 में ये दोनों का सहारा नहीं है. You don't have questions like level 1. You don't have numericals like level 2. It is applicative, judgmental, theory-oriented concept. Once you get the stuff, जैसे आपने क्लास पढ़ा, ठीक है, क्लास पढ़ने के बाद आपको वापस से क्लास कभी देखने का जरूरत नहीं है.
आपको केवल क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन से जो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है वो क्लास से नहीं हो सकता है, वो कोर रीडिंग से नहीं हो सकता है। कोर रीडिंग का ब्लू बॉक्सेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी स्क्वाइजर ट्वाइजर वगैरह। ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट स्क्वाइजर बिकॉज पीपल का हैबिट है, दे कैन लुक एट स्क्वाइजर, इट्स नॉट नेगेटिव, ओके, बट your base will be built from the class. From that you have to go into questions, and of course you can just scan the core, but blue boxes of the core, examples of the core need to be done because they are super brilliant. Only 3 days, Sunday I had the Sunday or Saturday I had a session with those students who are appearing in August this term, okay, those who are worried and all that. One thing I'm telling you very clearly, and it's very bad what's happening, is that जो लोग CFA लेवल 3 में नहीं क्लियर हो रहे हैं, इवन लेवल 2 में भी, सॉरी लेवल 2 तो 59% रिजल्ट था, वो लोग बार बार फेल हो रहे हैं। जो क्लियर हो जा रहा है वो एक बार में क्लियर हो जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग बट आई हैव सीन दिस, आई हैव नॉट कलेक्टेड डेटा, पर मेरे ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि जो एक बार नहीं क्लियर हो रहा है वो बार बार नहीं क्लियर हो रहा है, बिकॉज वो स्टफ जो है ना वो वैसा हो जाता है, स्टेन हो जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। डोंट रश, प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिवली एंड अंडरस्टैंड वट एवर एस्पिरेशंस यू हैव इन योर लाइफ। काश मैं फंड मैनेजर बनूं, ठीक है, काश मैं इतना अर्न करूं, काश मैं पोर्टफोलियो मैनेज करूं, काश मैं बढ़िया एनालिस्ट बनूं, काश मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर बनूं। जो भी आपका काश काश वाला है वो CFA लेवल 3 कोर कंटेंट से पूरा हो सकता है, ठीक है। आई हैव सीन इट थ्रू हैपनिंग एंड आई एम गारंटिंग यू, आई वांट टू नेम पीपल ओवर हियर। मैं नाम लेना चाहता हूँ, ये बंदा कहाँ पे है, ये बंदा कहाँ पे है, बट दैट बिकम्स टू पर्सनल, ठीक है। इफ आई वे टू टेक नेम्स, आई एम टेकिंग नेम ऑफ सुमंगल पुगलिया, रेयर एंटरप्राइजेस, क्या काम कर रहा है, वंडरफुल वर्क बाय साइड फर्म में। तरंग, ओल्ड ब्रिज कैपिटल, सुपर वर्क, ओके दे आर डूइंग। बुद्धदित्य इन कैलकाटा एट अ फैमिली ऑफिस, मोर देन 200 करोड़ वो फैमिली ऑफिस मैनेज कर रहा है, वंडरफुल वर्क कर रहा है। एक्सपोजर उतना नहीं है जितना वो लोग का है, बट गुड वर्क सिटिंग इन कैलकाटा बिकॉज ऑफ सम reservations. So I mean to say that there are people who are really doing great because they went inside the matter, applied the matter, okay, did explorative study. कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब तो चैट जीपीटी है, ठीक है, जेमिनाई है, यूज देम। कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पोर्शन, भाई हिंदी में समझा, इसका थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल बता, इसका एनालॉजी बता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, टॉक टू इट, ओके। चैट जीपीटी का ऐप इंस्टॉल करो, टॉक करो उससे, जेमिनाई का ऐप इंस्टॉल करो, डू एक्सप्लोरेटिव स्टडीज, बी इन अ जोश फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सी क्या आप ठंडे पड़ रहे हो, क्या आपका कोई एनर्जी लेवल नहीं है, तो अगर ऐसा है तो चेंज करो, ठीक है। स्टार्ट स्पोर्ट्स, स्टार्ट समथिंग दैट इज मोटिवेटिंग यू, लिसन टू गुड म्यूजिक, spend quality time with your family. This is the time where you are coming out of the studenthood, okay, into a matured person. Understand that why should a single minute from morning till night, your entire thing should become less vibrant. Energy level should be totally vibrant. There are X and Y and Z problems. सर पता नहीं हमारे प्रोग्राम में ये तो नहीं हुआ, ये लैकिंग था, वो लैकिंग था, CFA में ये तो नहीं है, CA में जैसे है, CFA में तो वैसे नहीं है, आर्टिकलशिप तो यहाँ नहीं होता है। वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, कंप्लेन अबाउट XYZ नंबर ऑफ फैक्टर्स, but if we try to find solution, there are solutions to everything, okay. I will be connected with you all, the classes are all ready, okay. Portfolio management is the only pathway we are doing, and in between sessions होता रहेगा कुछ questions, and आपको तो पता है इस एग्जाम के लिए, अगस्त के लिए, मैं खुद जो पेपर्स है वो चेक करने वाला हूँ, पर्सनल ग्रेडिंग, ओके। बिकॉज कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, कैसे आंसर लिखना है, कहाँ पे मार्क्स कट रहा है, कहाँ नहीं कट रहा है, मैं खुद पर्सनल ग्रेड करने वाला हूँ, उतना टाइम निकाला है मैंने, ठीक है। तो August 24 के लिए, Feb 25 में मोस्ट प्रोबेबली आई विल डू दैट, एंड ऑल्सो इन August 25 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। होप आई हैव बीन एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। किसी किसी का पर्सनल क्वेरी हो सकता है, बट देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच टाइम आई कैन टेक आउट फॉर दैट। कल CA का रिजल्ट्स निकला है, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वांटिंग गाइडेंस इन दैट रिगार्ड, so I do manage my time in a process oriented manner, and I'll do that the same with you. So see you again in such session or in some class which I take, live class or whatever. Live class is a wastage in level 3. Even if I take a class, I'll record a fresh class and share it with you, so that time wastage doesn't happen, okay. See you, bye bye, khush raho.